Good morning, students. Welcome to grade 8th English. Today we are going to discuss a new poem by T.S. Eliot, Macavity the Mystery Cat. This is the name of your poem. Next poem. Here we are going to summarize the poem. So, the first stanza in front of you, Macavity is a mystery cat. Is a mystery cat. His mysteries has given him another name like hidden paw. He is an expert criminal who can disobey the law with impunity. His action puzzled the police of Scotland Yard. The Flying Scot has in vain tried to chase him. By the time they reach the scene of crime, Macavity disappear. मतलब वो गायब हो जाती जब तक कि स्कॉटलैंड की पुलिस वहाँ तक पहुँचती है. You can see the different images of this particular cat Macavity. Okay, the second paragraph in front of you, the explanation of the second paragraph. There is no like Macavity, no one like Macavity. He has broken all man-made law, even the natural laws. He has broken even the natural law of gravity. Freaks have mysterious powers. His floating in the air without support with astonish even a freak. Above all, when you reach the scene of the crime, Macavity is nowhere to be seen. मतलब जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक के तो वो नहीं मिलेगी. आपके बेसमेंट में भी आप ढूंढोगे तो भी आपको वहाँ कभी कभी नज़र भी आ जाए, कभी एयर में दिख जाए, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे जब तक के तो वो गायब ही हो जाती है, वो हवा में छलांग लगाती है. नाउ द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पोएम Macavity अ जिंजर. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. यू मे, अच्छा यहाँ पे आगे पीछे हो गए, जो बुक के पैराग्राफ हैं और यहाँ के जो पैराग्राफ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. यू मे सीक इन हिज द बेसमेंट है ना, ये वाली लाइन है बेसमेंट वाली. तो यहाँ पे बेसमेंट के बारे में बताया. यू मे ट्राई टू फाइंड Macavity इन द बेसमेंट और इन द एयर बट इन वेन दो one who looks him find him nowhere under or over the earth. Macavity is a ginger colored cat. मतलब उसका कलर कैसा होता है, ऐसा जिंजर के जैसा कलर रहता है. मतलब आपने अदरक देखी होगी अपने घर में, उसका जैसा कलर होता है वैसा ही इस कैट का, बिल्ले का है. He is tall and thin. If you meet him, you will easily recognize him because of his deep set eyes. Okay. Next, his brows is deeply lined with doors. His head is highly domed. His coat is dusty from the neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. हम ये वाली लाइन के जो है डिस्कशंस यहाँ पे अभी कर रहे हैं, है ना. सो Macavity's forehead, जो उसका सर होता है उस पर रिंकल्ड है, मतलब इसमें सल पड़े हुए हैं. From that he appears lost in deep thinking all the time. His head sits high on his body like the dome on a building. His body is now well looked after, so the skin is dusty and the whiskers are uncombed. He moves his head from side to side like a snake. He was always alert. When you think he is dozing, he is वाइड अवेक. मतलब आपको जब लगेगा कि वो आंख बंद करके सो रही है या उसने झपकी ले ली है, लेकिन नहीं, वो तो मतलब तुरंत जागती है, मतलब जागती भी नज़र आएगी आपको. ये इस टाइप का उसके आई का लुक है ये Macavity का. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा Macavity बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्स देन द Macavity नो देयर. है ना, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बोल रही हूँ. Macavity इज़ स्पेशल, देयर इज़ नो पैरेलल, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है. ही इज़ अ डेविल इन द बॉडी ऑफ अ कैट, है ना, मतलब कोई शैतान है, मतलब कैट की बॉडी में कोई शैतान आ गया हो. ही इज़ मॉरली करप्ट, बहुत ज़्यादा करप्ट है, लाइक ए मॉन्स्टर. Ordinarily you may find him anywhere on your way. He may be there in by lane or in a square. वो आपको भले कोई भी गली में या कोई चौराहे पे दिख सकती है. However, when his crime is discovered and people look for him, he is nowhere to be found. वो कहीं भी लोगों को नज़र नहीं आती है. So this is all about the Macavity.
Now we are going to discuss the what this poetic device repetition. Repetition का मतलब होता है जब कोई चीज़ें बार बार रिपीट होती, कोई लाइन रिपीट होती, मैकेविटी मैकेविटी ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसको कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? रेपिटेशन बोलते हैं। इसके बाद में रेपिटेशन मैंने आपको बता दिया। नाउ द पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटी। जब अपन कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी एनिमल में या किसी और चीज़ से कंपेयर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाई करना कहते हैं। जैसे this is he cheats at card is an example of personification. Like a human, the poet suggested that Macavity play cards and cheat at them, मतलब उनको चीटिंग भी कर देती है उनके साथ में। यहाँ से इलियट ने पर्सोनिफिकेशन का लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, उसे कहते हैं सिमिली। जब किसी चीज़ में हम लाइक या एस जैसे वर्ड लगा के कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस लगा रहे हैं? सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज़ करें। सो ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग द मिस्ट्री कैट मैकेविटी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग वेल। थैंक यू।